آج جو 12 رکعت نماز نفل کا عمل ہے، یہ آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، یہ آج کی گھڑی فیصلوں کی گھڑی ہے۔ رمضان کی گھڑیاں کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں۔ اس کی ہر رات مبارک ہے، اس کا ہر دن مبارک ہے، اس کا ہر لمحہ مبارک ہے، اس کی ہر گھڑی مبارک ہے۔ پر مبارک وہ شخص ہے جو رمضان کی تلاش میں قدم اٹھاتا ہے۔ وہ شخص بہت مبارکباد کا مستحق ہے جو رمضان کی تلاش میں قدم اٹھاتا ہے۔ آپ میں سے کتنے حضرات ہیں جو رمضان کی تلاش میں جنہوں نے قدم اٹھایا اور بڑھے، آگے سے آگے بڑھے؟ کسی کے پاس کرایہ نہیں تھا، کسی کے پاس فرصت نہیں تھی، کسی کے پاس صحت نہیں تھی، کسی کے پاس ہمت نہیں تھی، اور ساری ہمتوں کو بھی جمع کیا، کرائے کو بھی جمع کیا، فرصت کو بھی جمع کیا، اور رمضان کی حاضری پہ چل نکلے۔ اللہ کے ہاں یہ اٹھنے والے قدم بہت محبوب ہیں، بہت مبارک ہیں، بہت سعید ہیں اور بہت سعادت مند ہیں یہ اٹھنے والے قدم۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ آج کی رات کا سجدہ کیا ہے، آج کی رات کے رکوع کی کیا طاقت ہے، کیا وقار ہے، کیا عزت ہے، کیا عظمت ہے، اور آج کی رات میں اللہ کی ہاں دعا کی کیا قیمت ہے، ایک آنسو کی کیا قیمت ہے اور آہوں کی کیا قیمت ہے۔ گمان نہیں کر سکتے۔ انسان جب جہاز میں بیٹھا ہوتا ہے اسے علم نہیں ہے میں کتنے بڑے پہاڑوں سے گزر گیا ہوں، پہاڑوں سے گزر گیا ہوں، پہاڑوں سے گزر گیا ہوں۔ میں بعض اوقات جہاز میں بیٹھا ہوتا ہوں سفر زندگی میں، تو نیچے پہاڑ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولا تیری رحمت ہی ایسی ہے، جب آ جائے پھر یہ چاہا پہاڑ تو پہاڑوں سے بڑے ہمالیہ بھی چھوٹے نظر آتے ہیں، اور جہاز انہی کے اوپر سے خود گزر جاتا ہے۔ آج ایک نقش دیا جائے گا جس کو پر کریں گے اور مٹکے میں ڈالیں گے۔ آج ایک چھلا دیا جائے گا جس کا ثبوت بھی میں پیش کروں گا۔ خود امام الاولیاء شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے، اللہ کے ولیوں کے بھی اماموں کے بھی امام ہیں شاہ ولی اللہ، ان کے ساتھ ثبوت پیش کروں گا۔ بعض اوقات انسان کو علم کی ناواقفیت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے انسان بدگمانی اور شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ انسان جب ڈھل جاتا ہے اور اولاد جوان ہو جاتی ہے اپنے غم بھول جاتا ہے، اسے اولاد کے نصیب کے لیے، اولاد کے مقدر کے لیے، اولاد کے بخت کے لیے، اولاد کی عزت کے لیے، اولاد کے وقار کے لیے زندگی چاہیے، زندگی چاہیے۔ پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کی جان ہے یا نہیں ہے، اس کا لقمہ ہے یا نہیں ہے، اس کی زندگی ہے یا نہیں ہے، اب اسے اولاد کے لیے کچھ چاہیے۔ زندگی میں سب کچھ دے سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو، سب کچھ دے جاتے ہیں، لوگ کوٹھیاں دیتے ہیں، لوگ بنگلے دیتے ہیں، مربع زمینیں دیتے ہیں، مال دولت دیتے ہیں، اولاد کو دیتے ہیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو دینا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ ڈگریاں دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، نوکر بھی دیتے ہیں، غلام بھی دیتے ہیں، گائے بھی دیتے ہیں، بھینس بھی دیتے ہیں، جہیز میں اولاد کو اونٹ بھی دیتے ہیں۔ مجھے دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ بتا دے جس نے اولاد کو بخت اور نصیب اور مقدر بھی ساتھ دیا ہو۔ ایک صاحب مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ بھر کے زیور دیا، دوپٹے کو یوں کیا اور اس میں زیور ڈالتا گیا، ایسے اٹھا کے ڈالتا گیا، لوگ حیران۔ زیور دیا، اس دور میں گاڑی دی، جب گاڑی 21,500 روپے کی آئی، اتنی 21,500 روپے کی گاڑی آئی، گاڑی دی، بنگلہ دیا، مال دیا،
नेमतें दी, ना मालूम क्या कुछ दिया। लेकिन आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी हड्डियां खत्म हो गई हैं, अपनी आंखों से देखा हूं कि बेटी मुझसे ज्यादा बूढ़ी हो गई है। उसके शौहर के बेरोजगारी का गम और उसके घर में बेबरकती। आलम यह है कि मेरी बेटी के हाथ में कोई चूड़ी नहीं, कोई अंगूठी नहीं, सब जेवर बिक गया है, सब बंगले खत्म हो गए हैं, सब दौलत खत्म हो गई है, सब माल खत्म हो गया है, हर चीज लुट गई है। मुझसे कहने लगे कि आपके पास कोई ऐसी दुआ है जो मेरी बेटी का बख्त, नसीब और मुकद्दर जाग उठे। मैंने सब कुछ दे के देख लिया और अब औलाद जवान हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूं। बेटे कहते हैं अब्बा बहन को कब तक भरेगा? इसकी औलाद जवान हो गई है, बेटी की औलाद जवान हो गई है कि अब्बा बहन को कब तक भरेगा? हम अब हमारा हक है, अब हमारी औलाद जवान हो गई है और मैं औलाद से छुप छुप के बेटी को देता हूं। अब मेरे पास भी खत्म हो गया है। कोई ऐसा है कि मेरी बेटी का बख्त, नसीब और मुकद्दर जाग उठे। और मेरे दिल से उस वक्त आह निकली, ऐ काश ये 11 और 12 की दरमियानी रात में अगर 12 नफिल पढ़ लेता और जिंदगी का मामूल बना लेता। इसमें बख्त भी है, इसमें नसीब भी है, इसमें मुकद्दर भी है, इसमें कर्जों से निजात भी है, इसमें रिस्क में तरक्की भी है, इसमें दौलत में तरक्की भी है, इसमें बरकतों और रहमतों के आलीशान महलात और ताज है। 12 और 11 और 12 की दरमियानी रात जो आज रात है, इसमें 12 नफिल पढ़ लेता। 2 रकात नमाज नफिल, सूरत फातिहा के बाद कुल हु अल्लाह, 2-2 करके 12 नफिल पढ़ लेता। 6 दुगाने और 12 नफिल मुख्तसर से अगर पढ़ लेता तो आज बेटी के साथ नहीं होता। मुझे एक दौलतमंद आदमी ने एक बड़ी काम की बात कही, आपसे कहता भी हूं और पूछता भी हूं। कहा गरीब की बेटियां अक्सर बख्त वाली होती हैं और मालदार की बेटियां अक्सर रुल जाती हैं। और मुझसे कहने लगे पता है क्यों? गरीब सारी उम्र गुर्बत में देख के बेट अल्लाह बेटी जवान हो गई, मैं कहां से दूंगा, वो अल्लाह से दुआएं करता रहता है। और मालदार को पता है मेरे पास ये माल है, ये दौलत है, ये बख्त है, ये माल है, ये असबाब हैं, ये वसाइल है, उसकी नजर असबाब पे होती है और गरीब की नजर मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह पे होती है। अल्लाह कहता है ठीक है, मैं फिर तुझे भी करके दिखाऊंगा, उसे भी करके दिखाऊंगा, तुझे तेरी बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा, उसे बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा। अल्लाह वालो, सारी दुनिया की दौलतें, माल, चीजें औलाद को दे दें, जरूर दें। उनके लिए विरसा छोड़ के जाना हरज नहीं। बड़े बड़े सहाबा अहले बैत छोड़ कर गए हैं विरसे, अंबिया छोड़ कर गए हैं विरसे हलाल के, कोई हरज नहीं। और कोई बख्त और नसीब और मुकद्दर का कोई किस्सा मुझे भी सुना दो। ये बख्त और नसीब कहां से मिलेगा? ये पेशानी पे अपनी बेटी और बेटे के बख्त और नसीब कहां से मिलेंगे? ये किस्सा मुझे भी सुना दो कोई, मुझे याद नहीं है। ये कहानी सच्ची मुझे भी सुना दें, मैं भूल गया हूं। ये कहां से मिलेगी ये चीज? याद रखिएगा, यह फर्शी दुनिया की कहानी नहीं है, यह सिर्फ अर्शी निजाम है। ये जिसके लिए फैसले हो जाएं, ये आज की रात फैसलों की रात है, ये आज की रात फैसलों की रात है, ये आज की घड़ी फैसलों की घड़ी है। सईद हैं, सादतमंद हैं, खुशकिस्मत हैं जो इस रात की कदरदानी करते हैं, जो तस्बीह खाने के एक एक अमल को आंखों से चूमते हैं, बेकदरी शक वसवसे मुब्तला में नहीं होते, शक और वसवसों में मुब्तला नहीं होते, बेकदरी नहीं करते। आप कदर वाले हैं, आप अजमतों वाले हैं, आप वकार वाले हैं। रमजान की घड़ियों में अपना सारा घर बार बोल के यहां आए हैं। कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी सादत है जो आपको मिली है। आप सारे वो हैं जो कहते हैं कि हम औलाद के बख्त और नसीब के लिए, औलाद की मुकद्दर के लिए, अगर औलाद नहीं है तो हमें अल्लाह औलाद दे दे, उसके बख्त और नसीब बे औलादी को दूर करने के लिए। एक बुजुर्ग थे, वो सबको औलाद के बख्त और नसीब की दुआएं देते थे। उनमें से ऐसे भी थे कि उनके कहते थे हजरत हमें हमारी औलाद नहीं है, पर कहते जाओ तुम्हारी औलाद के बख्त और नसीब मुकद्दर अच्छे हों। कहते हजरत हमारी औलाद नहीं है, कहते जाओ तुम्हारी औलाद के बख्त और नसीब मुकद्दर अच्छे हों।
किसी ने उन्हें समझाया, दरवेश की बात को सुनो समझो। वो कहते हैं औलाद, तुम कहते हैं औलाद नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारी औलाद के बख्त नसीब मुकद्दर अच्छे हों। इसका मतलब है अल्लाह औलाद देगा तो उनके बख्त नसीब मुकद्दर अच्छे होंगे। ये औलाद मिलने की दुआ भी है, औलाद पाने की दुआ भी है। ये नफिल, हाँ मैं हैरान हूं, कुछ चंद सालों से बहुत से और हजरात ने भी नफिल के बारे में बताना शुरू किया। चंद सालों से, 4-5 सालों से शायद मेरे ख्याल में सारी दुनिया का जो है वो तस्बीह खाने की तरतीब पे चल पड़ी। खुशी होती है, खुशी होती है, चल पड़े, अच्छी बात है। क्यों? कि अल्लाह की मखलूक को हमारी जात से नफा हो जाए, अल्लाह की मखलूक को हमारी जात से फायदा हो जाए, और अल्लाह की मखलूक का फैज आम हो, तस्बीह खाने का फैज आम हो जाए, खुशी की बात है। कितने आसान नफिल हैं। 2 नफिल पढ़े, सूरत फातिहा के साथ कुल वल्लाह मिला ले, फिर सलाम फेर लिए, फिर 2 नफिल और पढ़ लिए, फिर 2 नफिल और पढ़ लिए। 12 रकात नमाज नफिल खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाह कल्बी, दर्द और गम के साथ पढ़ लिया। और अल्लाह देख रहा है कि इसका जज्बा क्या है। यह रमजान की घड़ियों में मुझसे चाहता क्या है और मांगता क्या है, और ये रमजान की घड़ियों में मेरे साथ इसका मामला क्या है। मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। अपने और अपनी नस्लों के लिए, अपनी और अपनी नस्लों के लिए हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को थपकी देते थे और बाजों का सर पे हाथ रखते थे और कहते थे, बच्चे, ए शबाब, ए जवान, ए बच्चे, रब तेरी नस्लों को तवंगरी अता फरमाए। और तवंगरी से मुराद रूहानियत की तवंगरी, रूह की मालदारी, रूह की दुनिया और रूह की मालदारी, और दुनिया की दुनिया और दुनिया की मालदारी। दुआ फरमाते थे, बच्चों को भी दुआ फरमाते थे। और उस दुआ का फायदा ये होता था, उस दुआ का फायदा ये होता था, कोई बच्चा बड़ा होके शादी के बाद बे औलाद नहीं रहता था, और फिर औलाद भी होती थी और उस औलाद में तवंगरी भी आती थी, बख्त और नसीब और मुकद्दर भी जाग उठते थे, जाग उठते थे। ये नफिल साल के बाद आते हैं, रमजान की घड़ियों में आते हैं। आप सारा साल इंतजार करते हैं, आप सारा साल इंतजार करते हैं। हफ्ता के बेशुमार लोगों से मैंने ये बात सुनी, बेशुमार लोगों से मैंने ये बात सुनी कि कहा कि बेटी और बेटे की शादी, कहा कोई मसला नहीं, बस रमजान आने दो, रमजान, और रमजान की 11 और 12 की दरमियानी रात पे बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे, तस्बीह करेंगे, नफिल पढ़ेंगे और अल्लाह से मांगेंगे, और अल्लाह गैब से असबाब मुहैया कर देगा, अल्लाह गैब से असबाब अता कर देगा। कोई परेशान ना हो, कोई परेशान ना हो। यहां तक कि अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया करता है, ऐसे असबाब बनाता है, जहां जिंदगियां मायूस हो गई हों, जहां हालात खत्म हो गए हों, अल्लाह वहीं से राहें निकालता है, अल्लाह वहीं से रास्ते निकालता है, अल्लाह वहीं से मंजिलें दिखाता है और जिंदगी में इज्जत और उरूज और शान और शौकत अता फरमाता है। आप नहीं सोच सकते इन नवाफिल की कीमत क्या है, इन नवाफिल की कदर क्या है, इन नवाफिल का वकार और मकाम क्या है। ये जिन्होंने पाया है ना, उनसे पूछें, वो खुश होके बताते हैं, वो सरशार होके बताते हैं, वो अल्लाह की नेमतों की कदरदानी को सामने रख के बताते हैं। हाँ हाँ, हम मायूस थे, हमारी जेब में कुछ नहीं था, कोई वसाइल असबाब नहीं थे। अल्लाह का निजाम देखें, 11 और 12 की नफिल पढ़े, रब ने हमें ये दिया और ये अता किया, ये अता किया। उनसे पूछें, है कोई बताने वाला? उनसे पूछें कि हमें ये अल्लाह ने अता किया। कौन बताने वाला है जिसको 11 और 12 के दरमियानी नफिल में रब ने अता किया? जी, दो नफिल पढ़े 2 साल पहले, शादी भी हो गई और रिज़्क़ का बेहतरीन अल्लाह ने वसीला बना दिया। दास्तानें हैं इस जिंदगी में फैली हुई, बैठ जाएं अभी, दास्तानें अभी जिंदगी में फैली हुई।
कोई शख्स आज तक मायूस नहीं हुआ, मायूस नहीं गया। जिंदगी में हर शख्स को कामयाबी मिली है। यकीन हो, दर्द हो, दिहान हो, और अंदर एक कुढ़न हो, और अंदर दिल सोजी हो कि अल्लाह तू करीम है, तेरे खजाने में कमी नहीं। और याद रखिएगा, अगर औलाद की शादी हो गई है, कभी ना गलत फहमी में मुब्तला हो कि मेरी औलाद की शादी हो गई है। अगली नस्लों के लिए अल्लाह से वारिस मनवा लें, अगली नस्लों के लिए अल्लाह से आगे खजाने खुलवा लें, और अगली नस्लों के लिए अल्लाह के खजानों से दरवाजे खुलवा लें। अगली नस्लों के लिए, आइंदा नस्लों के लिए अल्लाह से खुलवाने खजानों के दरवाजे। आइंदा नस्लों के लिए जब दरवाजे खुलवा लेंगे, अल्लाह करीम है। अब मिट जाएं, खत्म हो जाएं, रब तो बाकी है ना, और रब के फैसले बाकी हैं, रब का निजाम बाकी है। और अल्लाह फिर ऐसे करके दिखाता है, अल्लाह ऐसे करके दिखाता है। अल्लाह नस्लों को पाल के दिखाता है, खिला के दिखाता है, वकार, इज्जत, शान और शौकत दे के दिखाता है। अल्लाह ऐसे करके दिखाता है, आप नहीं गुमान कर सकते। आज की रात में एक एक सजदा फरमाए, जो सजदा देता है रमजान में, एक तरावी का सजदा है, उस पे अल्लाह पाक उसको 70,000 दर्जे बुलंद करते हैं। एक रिवायत, दूसरी रिवायत में है एक जन्नत में घर अता करते हैं, जिस घर के अंदर 70,000 दरवाजे होते हैं, हर घर में 70,000 फरिश्ते होते हैं, और हर कमरे होते हैं 70,000, उसमें खाने और नेमतें। लंबी रिवायत है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, जन्नत मिलती है, नेमतें मिलती हैं इन रातों में एक सजदे से। और आप 12 रकात नमाज नफिल में कितने सजदे देंगे? 24 सजदे। आप सोचे तो सही, मिलेगा क्या? सोचे तो सही, पाएंगे क्या? और अता कितना होगा और मिलेगा कितना, आप गुमान नहीं कर सकते। इन नवाफिल को ध्यान से पढ़ें, इन नवाफिल को एतमाद से पढ़ें। आपकी शादियां हो गई हैं, अपनी नस्लों को विरसा दे के जाना, अपनी नस्लों को फकीर मंगता भिखारी ना छोड़ के जाना, अपनी नस्लों को मंगता और साइल और दर दर का ना 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 ना, उस करीम के हवाले करके जाना जो कफील भी है, वकील भी है, जो हाफिज भी है, हफीज भी है, जो नासिर भी है, नसीर भी है। वो संभालेगा, फिर वो हिफाजत करेगा, और वो करके दिखाएगा। वो अपनी अताओं और बरकतों के दरवाजे खोल के दिखाएगा और कहेगा, मैं ऐसे करके दिखाता हूं। तू मांग के गया था आज से 5 नस्लें पहले, 7 नस्लें पहले, नस्लों के लिए मांग के गया था। मैं नस्लों को ऐसे पालता हूं। बस एक काम कर, 11 और 12 के दरमियान में 12 रकात नमाज नफिल जिंदगी भर ना छोड़। फैसला कर ले, या अल्लाह मैं जब तक जिंदा हूं इन औकात में खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाह कल्बी और दर्द वाले नफिल नहीं छोड़ूंगा। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे, हमारे घर में बेटियां बहुत हैं, बहन भाई 4-5 हैं, बेटियां बहुत हैं, इनके लिए दुआ फरमा दें। मैंने कहा, बेटियों के लिए दुआ अगर कराना चाहता है, हर नमाज की अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद पढ़ लिया कर दुआ। पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। और 11 और 12 के दरमियान के 12 नफिल कभी ना छोड़ना, ये अत्तहियात में ना छोड़ना दुआ, और ये 12 रकत कभी ना छोड़ना। तेरी बेटियां, तेरी बेटियां, बेटियों की बेटियां, उनके बेटे और नस्लें, अल्लाह उनको आबाद करेगा, शाद करेगा, बामुराद करेगा, बख्त बुलंद करेगा, रिस्क वसी करेगा, और पिशानी के ऊपर अल्लाह शान और शौकत लिख देगा। सारी दुनिया की दौलत दे दी, नस्लों को तवंगर ना देखा, आंखें ठंडी ना हुई। कुर्रता आयुनिम, अल्लाह मेरी नस्लों को मेरे लिए आंखों की ठंडक बना दे। क्या ख्याल है, उनके नसीब और मुकद्दर अच्छे ना हुए, उनके बख्त बुलंद ना हुए, वो दर दर की ठोकरें खाएं, माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी।
माँ बाप की आंखें ठंडी उस वक्त होंगी जब उनकी औलाद के पास वक्त होगा। कहो, कहते जाओ आमीन। बरकत होगी, दौलत होगी, कामिल ईमान होगा, कामिल इखलास होगा, कामिल अखलाक होगा, कामिल आफियत होगी, नसीब होंगे, मुकद्दर होगी, चमकती पेशानी होगी, दमकता दिल होगा, इज्जत वकार शान शौकत होगी, सर बुलंदी होगी, और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। होगी, अल्लाह करके दिखाता है, अल्लाह अपने खजानों में दे के दिखाता है। हाँ, ये आज के रात का खास अमल है, ये आज की रात का खास अमल है। इस अमल में कभी कोताही ना कीजिएगा, इस अमल को जिंदगी भर अपना साथी बनाएं। अभी अय्याम 20 के रोजे आ रहे हैं, 13, 14 और 15। नफिल रोजे रख के सारी रात सूरत फातिहा पढ़नी है, नंगे सर नंगे आसमान के नीचे। लेकिन औरतें नंगे सर न हो, और अगर नंगा आसमान नहीं मिलता तो ऐसी भी पढ़ सकते हैं। खाना पीने को दिल चाहे खा लें, हाजत है तो कर लें, बावजू पढ़ें सारी रात। 3 रातें हैं, रोजा तो वैसे ही होगा, रात तो आधी वैसे ही गुजर जाती है, और आधी से पहले वैसे ही उठ जाते हैं सेहरी के लिए। 2-4 घंटे होते हैं। अगर सूरत फातिहा पढ़ लें, मैंने अय्याम 20 की सूरत फातिहा पढ़ने वालों को, मैंने अय्याम 20 के रोजे, ये नफली रोजे होते हैं, ये तो फर्ज रोजे हैं। सारी कायनात नफली रोजे रखे, आदम से लेकर आखिरी दम कयामत तक एक फर्ज रोजे का मुकाबला नहीं कर सकते। ये फर्ज रोजे हैं। जो फर्ज रोजे रख के रात को फातिहा पढ़ेगा, उसकी नस्लों में अल्लाह क्या तमंगरी देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे पास वाकयात हैं, मैंने कई दफा बताए हैं, बस सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं, ख्याल कीजिएगा। 13, 14 और ये 15 आ रही है, और 13, 14 और 15 में नफली रोजे तो आप रखते होंगे। अब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखें। जब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखेंगे, कमाल है। और फिर आप नफली एतकाफ में हैं, ईद तक एतकाफ का तय किया हुआ है, आपकी तो पढ़ना ही और है। जो तस्बीह खाने से बाहर वाले हैं वो भी पढ़ें, उन्हें भी कमाल मिलेगा, उन्हें भी वही बरकत मिलेगी, उन्हें भी दुनिया आखिरत की खैरें और बरकतें दुनिया के जिस कोने में हैं। लेकिन जो तस्बीह खाने में क़याम कर रहे हैं, उनके कहने ही क्या कि उनको कितनी रहमतें और कितनी बरकतें और कितनी खैरें मिलेंगी और कितनी अताएं मिलेंगी। एक तो ये नफिल है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आज के रात में ये तोहफा है। हमारी रूहानियत और अमलियात की किताबों में यहां तक है, ये अमल करना है तो मुंह में मिस्री रख के करना है। लेकिन चूंकि हम नफिल पढ़ते हुए मुंह में मिस्री नहीं रख सकते हैं, वो वजीफा करते हुए है, तो अगर पताशे पिएंगे तो मुंह में कुछ तो मिठास बाकी होगा। तसल्ली से पी के फिर नफिल पढ़ें। ये पताशे बहुत नेमत हैं, मैंने इसको स्पेशल दम किया है और इनको दम किया है, और आपको ये हदिया है और ये तोहफा है। और एक अमल देता हूं आज, पताशों पे एक अमल भी देता हूं। पताशों में अगर होवल शाफी होवल काफी होवल माफी, क्या? हाँ, होवल काफी, अगर ये पीते जाएं, होवल शाफी होवल काफी होवल, पढ़ते हुए पीते जाएं, बातें भी करें, हंस मजाक भी करें, क्या हर्ज है, पर पीते जाएं और तसव्वुर करें, अल्लाह फलां बीमारी, मेरे फलां अजीज की फलां बीमारी, मेरे फलां मोहसिन की फलां बीमारी, अल्लाह फलां तकलीफ, अल्लाह बेऔलादी, अल्लाह मुश्किल, अल्लाह परेशानी, अल्लाह फलां रोग है, तू करीम है, आज की रात में ये नेमतें दी हैं, तो ये नेमतें जब दी हैं, ऐ अल्लाह ये मुरादे भी अता फरमा। हाँ, ये मुरादे भी अता फरमा। अगर ये पढ़ते हुए पताशों पे ये पढ़ते हुए आप पिएंगे, जितनी दफा पढ़ लें तो एक दुगना अजर मिलेगा। पताशों के पीने का अपना एक जायका है, अपना जायका है। तो पताशे गए, पताशों का पीना गया,
पहले तो दूध पताशे होते थे, दूध में पताशे डाल के उसका मीठा किया जाता था, और अमूमन मेहमान जो आते थे उनको पताशों वाला शरबत दिया जाता था। ऐसा नहीं दिया जाता था घुला हुआ होता था, पानी में ढाल के पीते थे। मेहमान बातें भी करता रहता था और पताशे भी पीता रहता था, बातें भी, और जी चाहता था तो और पानी डाल लेता था और पताशे भी पीता रहता था। ये भी अल्लाह पाक ने नेमत आपको अता की है। इस नेमत को भी इंशाअल्लाह ताला आप जाय नहीं करेंगे। इस नेमत को, एक नेमत और जो आज की दरमियानी रात में आपके लिए है, वो बहुत अजब नेमत है। वो एक आपको तोहफा देना चाह रहा हूं, एक तोहफा देना चाह रहा हूं। वो हाजात वाला नक्श है। 29 हुरूफ तहज्जी हैं, गौर से समझिएगा। सारा कुरान जो है ना, सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? अलिफ बा ता ये और या तक, ये सारा कुरान हुरूफ तहज्जी का, सारा कुरान जो है अलिफ बा से मिलके बना है। सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है, सारा कुरान। ये नक्श है, नक्श है। ये नक्श जो है हाजत वाला, ये 70 औलिया कराम की तलाश है, 70 औलिया कराम की इजाजत है, और 70 औलिया कराम की ये तवज्जो है और उनके तजर्बात में है। हुरूफ तहज्जी का नक्श, अलिफ बा ता सा, ये हुरूफ तहज्जी का नक्श। और इसके साथ जो स्याही है वो पता है किस चीज की है? उसमें आब जमजम है 1, जाफरान है 2, बारिश का पानी है, अर्के गुलाब है, और बहुत सी चीजें हैं। ये स्याही है, ये स्याही है। आपको कलम भी और स्याही भी कितने के मिली? सोचें तो सही। ये 100 रुपए का पेन भी मिलता है, डब्बी देखें कितने की है, जाफरान कितने का है, अर्के गुलाब कितने का है। इतनी मजबूत बोतल डब्बी है, इसको 7वीं 10वीं मंजिल से नीचे फेंको तो नहीं टूटेगी। क्या पता कमाना मतलूब है या खिदमत मतलूब है, या अल्लाह के मामले हैं। मरने से पहले तो मुझ जैसा बंदा वैसे भी मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। ये नक्श बहुत ताकतवर है, बहुत जबरदस्त नक्श है। ये आपके पास नक्श है सारा, अलिफ का नक्श, अलिफ का नक्श। और याद रखना, जो अलिफ का नक्श हम लिखेंगे ना, अलिफ का नक्श, इसकी बैक साइड पे गैन का नक्श आएगा। देखिए जरा, है गैन आएगा ना, अलिफ का नक्श होगा और इसकी पुष्ट पे गैन का नक्श आएगा। अच्छा, इसके जो है, इससे पहले अलिफ के नक्श और गैन का नक्श लिखने से पहले यह रोजाना तस्बीह खाने में लिखवाया जाएगा। और यह कुल कंदर कितने नक्श हैं? हाँ जी, 15 नक्श हैं। ये कुल कितने नक्श हैं? ये अगर एक दिन में 2 लिखें तो कितने नक्श बनेंगे? हाँ जी बताएं। एक दिन में अगर 2 लिखेंगे तो कितने नक्श बनेंगे? एक दिन में 2 लिखेंगे तो 30 नक्श बनेंगे। एक दिन में 2 नक्श लिखेंगे तो 30 बनेंगे। हाँ जी, ये 15 नक्श हैं। आज अलिफ का नक्श लिखेंगे तो उसके ऐन पीछे गैन का नक्श है। अलिफ का नक्श लिखेंगे तो उसके पीछे गैन का नक्श है। अच्छा, नीचे लिखी हुई छोटी सी लाइन है, ये पेन है, ये रूहानी स्याही है, जाफरानी स्याही है। इस पेन से अपनी हाजत लिखनी है, लेकिन हाजत लिखने से पहले एक जिक्र करना है। मैंने आपको एक खास जिक्र करवाना है। मैंने आपको खास जिक्र करवाना है, और मेरे साथ इस नक्श को पुर करने से पहले जिक्र होगा। और याद रखना, ये रोजाना होगा। मुझे उन लोगों पे अफसोस हो रहा जो दूसरे मुल्कों पे बैठे हैं या दूसरे शहरों में बैठे हैं। ये काम ऑनलाइन हो नहीं सकता। जो तस्बीह खाने में है वो मौजूद हैं, और जो तस्बीह खाने में नहीं है उनके लिए मेरी मजबूरी है। और लाहौर वालों के लिए कितनी बड़ी गनीमत और सआदत है कि लाहौर वाले रोजाना रात 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे पहले आ जाएं तो तरावियां भी यहीं पढ़ लें, वरना रात 9 बजे आके इस नक्श को पुर करेंगे रोजाना। और रोजाना इस नक्श को पुर करने के बाद बाहर नक्श लिखे हुए खास घड़े पड़े हैं, रोजाना इस नक्श को काटेंगे। इस नक्श को, यानी ये
आगे भी पुर करना है, पीछे भी। एक दिन में 2 नक्श पुर करने हैं और अपनी हाजत लिखनी है, अपनी परेशानी लिखनी है, अपनी मुसीबत लिखनी है। और ये हरूफ तहज्जी के नक्शे हैं, जरा गौर से सुनना। सारा कुरान हरूफ तहज्जी से मिलके बना है। सारा कुरान किससे मिलके बना है? किससे मिलके बना है? हरूफ तहज्जी। और ये हरूफ तहज्जी का नक्श है, हरूफ तहज्जी। आपको याद है मैंने एक बाबा जी की बात बताई थी। वो कहते थे मैं ठग हकीम हूं। बाबा जी बहुत गालियां देते थे, बहुत गालियां। मैं उनकी खिदमत में जाता था, मेरे साथ बहुत शफकत फरमाते थे, बहुत शफकत। एक बार माई आई, कहने लगी मेरी औलाद नहीं है। मुझे कहने लगे वो कागज ला कहीं से। मैं कहीं से कागज ला। कहने लगे अलिफ से लेकर या तक इसको लिख के दे दे। और कहा देख बेटा होगा, ये भी लूंगा, बकरी भी लूंगा, बकरा भी लूंगा, सूट भी लूंगा, ये भी लूंगा, लू भी लूंगा। मैं कह रहे दूंगी 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 दूंगी। और उनके पास लोग ये चीजें लाते थे। आपको इल्म नहीं है, ये जो हरूफ तहज्जी के नक्श हैं, ये समझ लें अगर अलिफ लिखते हैं तो इसमें सारा कुरान है, और बा लिखते हैं तो इसमें सारा कुरान है, और ता लिखते हैं तो इसमें सारा कुरान है, और कुरान की तासीर है, और कुरान का कमाल है, और कुरान की ताकत है, और कुरान की कुव्वत है, और कुरान के जलवे हैं, और कुरान के नक्शे हैं, और कुरान की अजमतें हैं, और कुरान का वकार है। और ये अव्वलीन और आखिरीन 70 औलिया सदियों से आजमूदा नक्श चले आ रहे हैं, जो औलिया कराम खास देते थे मुसीबतों के मारूओं को, गम के मारों को, परेशानियों के मारों को। वो मुसीबतें कर्जों में हैं, वो तकलीफों में हैं, वो बीमारियों में हैं, वो इलाज बीमारियों में हैं, वो इलाज मसाइल में हैं, वो मुश्किलात में हैं, वो नाकामियों में हैं। कोई किसी किस्म की मुसीबतें, कोई किसी किस्म की परेशानियां, कोई किसी किस्म का जवाल अगर है ना, तो मेरी तरफ तवज्जो कर लें। फिर अगर किसी किस्म का जवाल है और आप कहते हैं वो बस हल नहीं होता, तो मेरी दरखास्त है इस नक्श को पुर करें। जहां लकीर है अभी ना करें, मैं लिखवाऊंगा, अभी ना करें। जहां लकीर है उस पे अपनी हाजत लिखेंगे, जितनी लिखें जितनी लिखें। और जो लिख नहीं सकते वो उंगली से लकीर फेरते जाएं, उंगली पे ऐसे लिखते जाएं, उंगली पे निशान लगाते जाएं। अल्लाह दिलों के भेद खूब जानता है, अल्लाह दिलों के राज खूब जानता है, अल्लाह दिलों की दुनिया खूब जानता है, अल्लाह आंखों की फरियादें भी जानता है और दिल की आसें भी जानता है, अल्लाह दिल की मुरादें भी जानता है। बहुत ज्यादा मेरा रब जानता है। आपके पास वो पेन है जिस पेन के अंदर रूहानी स्याही है, जाफरान है, गुलाब का अर्क है, जमजम का पानी है, बारिश का पानी है, और भी बहुत सी चीजें इस स्याही में मौजूद है। और ये पेन, जबरदस्त पेन आपको दिया है। और ये पेन आप कभी ना बाजार से इन चीजों की कीमत तो करवा लीजिएगा। बाज लोग होते हैं उनके मिजाज में दूरबीन लगानी होती है कि पता नहीं कितने कमा रहा होगा पीर इनका, तस्बीह खाने का पीर कितना कमा रहा होगा, कितना कमा रहा होगा, कितना कमा रहा होगा। तो दूरबीन लगा के ना इन चीजों का रेट ले लीजिएगा कि जाफरान कितने लाख रुपए किलो है। हजार नहीं, कितने लाख रुपए किलो है असली जाफरान, कितने लाख रुपए किलो है। बहुत कमाल नक्श है, बहुत ताकतवर नक्श है। और मिट्टी के घड़े के ऊपर नक्श लिखे हुए हैं, और आप ये रोजाना 2 नक्श लिख के इसको काट के उस घड़े में डाल के आज से चले जाएंगे। आज आपका पहला नक्श होगा, आज आपका पहला नक्श होगा। अपनी हाजत लिखेंगे, रोज 2 नक्श लिखेंगे। 2 से मुराद एक आगे और एक पीछे वाला। इसी कागज पे देखें दोनों तरफ नक्श लिखे हुए हैं। और आज का नक्श में अलिफ आएगी तो उसकी पुष्ट पे क्या आएगी? गैन। ये लिखेंगे। और फिर रोजाना एक पूरी रूहानी जमात बैठ के इन घड़ों पे अमल करेगी। आपको मुबारक हो। और मैं खुद इस पे अमल करूंगा। रूहानी जमात बैठ के रोजाना रूहानी जमात बैठ के इन घड़ों पे अमल करेगी। रोजाना बैठ के इन घड़ों पे अमल करेगी, रोजाना बैठ के। और इन घड़ों के ऊपर खास नक्श पहले से लिखे हुए हैं।
اور خاص چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ طاقتور، اور میں انشاءاللہ خود اس پہ عمل کروں گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ روزانہ آپ اس پہ نقش ڈالیں گے تو اس میں کل روزانہ کتنے 15 نقش بن جائیں گے نا، 15 نقش بن جائیں گے۔ آپ روزانہ ڈالیں گے 27، یہ 26 کو ختم ہو جائیں گے۔ 27 کی رات کو یہ گھڑے سامنے رکھ کے ان کی مرادیں، ان کی آسیں، ان کی امیدیں لے کر دعا مانگی جائے گی۔ میں کیا کروں گا؟ پتہ ہے کیا کروں گا؟ ان تعویذوں کو ہاتھوں میں لوں گا اور پھر دعا کروں گا، پھر تعویذ ہاتھوں میں لوں گا، اللہ جنہوں نے مرادیں لکھی ہیں، اور آپ آمین کہیں گے، اور مجھے اپنی دعائیں نہیں، آپ کی آمین پہ بڑا بھروسہ ہے۔ اور 27 کو تو دعا ہوگی بڑی، سجدے میں دعا ہوگی، رو کے سجدوں میں دعا ہوگی 27 کو۔ تو یہ نقش بہت کمال نقش ہے، بہت زبردست نقش ہے، اور اس کی تاثیر آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آئیں بیٹھ کر اس نقش کے لیے ایک اسم پڑھ لیں، وہ اسم ہے یا جلیلو یا جمیلو۔ کیا لفظ ہے؟ یا جلیلو۔ پڑھیں دل کی گہرائیوں سے اس نقش کا، اور تمام حروف کا تاثیر، تمام حروف کی طاقت اور تمام حروف کی قوت اور اللہ کے نام کی عزت اور عظمت اور وقار آج اس نقش کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور ایک چیز پھر سوچ لیں، یہ حروف تہجی کا نقش ہے، سارا قرآن ان حروف سے مل کے بنا ہے، میرے کملی والے کا فرمان ان حروف سے مل کے بنا ہے، اسماء حسنہ ان حروف سے مل کے بنے ہیں، مسنون دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، قرآنی دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، مستجاب دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، اللہم جن دعاؤں سے پہلے آتا ہے ان حروف سے مل کے بنی ہیں، ربنا جن دعاؤں سے پہلے آتا ہے ان حروف سے مل کے بنی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان حروف سے مل کے بنی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ان حروف سے مل کے بنی، یونس علیہ السلام کی دعا ان حروف سے مل کے بنی، داؤد علیہ السلام نے ان حروف سے اللہ سے مانگا، کملی والے نے ان حروف سے مانگا، فاروق اعظم صدیق اکبر نے ان حروف سے مانگا، عثمان غنی حیدر قرار حسنین کریمین نے ان حروف سے مانگا، کربلا کی دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، مستجاب دعائیں ان حروف سے مل کے بنی ہیں، ان حروف سے مل کے بنی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان حروف سے مل کے بنی ہے۔ آئیں ہم اللہ کو کہتے ہیں مولا، اللہ کو کہتے ہیں مولا، یہ حروف وہی ہیں، ان کی تاثیر، ان کی طاقت، ان کی قوت اپنے غیب کے خزانے